to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this we talk news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As always say, in every system there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We have esteemed guest today in our shows, Krishna Hegde Saab from the Eknath Shinde Sena. Hegde Saab, welcome to the show. Namaskar. We have Mr. Hanuman Pawar from the Indian National Congress. Pawar Saab, namaskar. Welcome to the show. We got Dr. Suranam Malhotra ji from Sharad Pawar, NCP. Suranam, Dr. Malhotra, please welcome to the show. The topics that we discussed today is the Bombay High Court on the Badlapur encounter says they can't believe it's an encounter, they want more proofs. But Eknath Shinde ji, the Chief Minister, says, I stand by my police officers. They have got the right to self-defense. The right to self-defense to shoot down criminals exists. That is what Eknath Shinde ji ne खुलेआम कहा. Rahul Gandhi ji ne question किया सरकार को, the central सरकार, government, that who is running the government. किस प्रकार से स्टेटमेंट्स आ रहा है. आप तीन काले कानून, पहले काले कानून बोलते हो, उसको वापस लाने के बात कर रहे हो. आर यू इन चार्ज और कंगना रनौत इज इन चार्ज. शरद पवार साहब सेज सत्ता डोक्यात गेले आहेत. The justice should always be within the four walls of the law. You can't go beyond the law to give justice. We start from you, Hegde Saab. Krishna Hegde Saab from Eknath Shinde Sena. Bombay High Court, Badlapur encounter. They ask certain questions. They say we want to be certain. हम चाहते हैं कि हम इस चीज को स्टडी करें. हम suspicion नहीं कास्ट कर रहे. But they questioned a lot of questions. But Eknath Shinde ji कह रहे हैं कि the right to self-defense of the officers, I stand by it. Krishna Hegde Saab. Can you hear me, Hegde Saab? Yeah, I can hear you clearly. Yeah, please go on. Can you hear me? Yes, I can. Okay, so first let me tell you that this is the initial observation of the court after the first hearing, and this is not the final hearing or the judgment. And when the SIT, 8-member SIT team gives its report, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. दूसरी बात जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है वो सही कहा है कि भाई जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा. और इस केस में अगर अक्षय शिंदे है तो कानून ने अगर उसको सजा नहीं दी तो निसर्ग ने, नेचर हैज गिवन हिम द सजा, निसर्ग ने उसको सजा दे दी है. अभी जो कह रहे हैं कि जो अक्षय शिंदे है उसका एनकाउंटर हुआ, तो मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या आप ये सोचेंगे कि भाई अक्षय शिंदे नाम के एक हिस्ट्री शीटर पुलिस के रिवॉल्वर लेके पुलिस को 3 गोली दागेगा, 3-3, 4-4 पुलिस की हत्या करेगा और भाग जाएगा, और तब आप कहेंगे कि भाई शोपीस है क्या पुलिस का रिवॉल्वर, पुलिस ने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया सेल्फ डिफेंस में. और जब आज अटैक हो रहा है सेल्फ डिफेंस में तो आप बोल रहे हैं कि भाई कुछ तो छुपाने वाली बात है जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस हो रहा है. दूसरी बार मैं पूछना चाहता हूं, जो ये अक्षय शिंदे है, he was a history cheater, he was a sexual pervert and predator, and he has 4 wives, and one of his wives has complained against him. He was a rapist, he was a serial rapist, he has raped several small children, 2 of which came to our notice, aged 3 and 4. तो महाराष्ट्र के जो महिला है, बहनें हैं और माताएं हैं, वो सुरक्षित नहीं रहना चाहिए? क्या हम अक्षय शिंदे जैसे लोगों को बाहर छोड़ के बोलना चाहिए कि और बच्चों का रेप करो और महिलाओं का शोषण करो, और जब कानून हो या निसर्ग हो उन्होंने उसको अंजाम तक पहुंचा दिया, तो यही लोग जो 20 दिन पहले कह रहे थे कि उसको फांसी देना चाहिए, चौराहे पे उसको मारना चाहिए और फांसी देकर उसको लटकाना चाहिए, आज वो एक रेपिस्ट के समर्थन में आ रहे हैं. वो बहुत शर्म की बात है. और मुझे लगता है कि ऐसे अगर हम कोई रेपिस्ट का समर्थन करने जाए
तो इससे बुरा अंजाम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि ये बदला महाराष्ट्र के महिलाओं का, ये बदला जो है महाराष्ट्र के बच्चों का, और ये बदला जो है महाराष्ट्र के रहने वाले नागरिकों का और देश के रहने वाले नागरिकों का है। क्योंकि जब कोलकाता में ऐसे डॉक्टर महिला का हत्या हुआ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये इंडी गठबंधन के लोगों ने कुछ वहां पर स्टेटमेंट नहीं दी। उसके बाद जो महालक्ष्मी कुछ दिन पहले कर्नाटक में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर उसके फ्रिज में डाल दिया, तो ये इंडी गठबंधन उद्धव ठाकरे जी के लोगों ने कुछ नहीं कहा। और जब पंजाब में 55 एनकाउंटर 6 महीने में हुए हैं और 2 एनकाउंटर तमिलनाडु में पिछले हफ्ते में हुए हैं और 3 एनकाउंटर 2 महीने में हुए हैं, तो ये इंडी गठबंधन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कहते। और यहाँ पर अगर एक एनकाउंटर में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कोई अपराधी को, जो हिस्ट्री शीटर है, जो रेपिस्ट है, जो सेक्सुअल पर्वर्ट है, जो सेक्सुअल प्रीडेटर है, उसको गोली मार दी, तो वो कहेंगे कि ये फॉल्स एनकाउंटर है। मैं ये बात का खंडन करता हूँ। और ऐसे पार्टियों के जो दोहरा मापदंड है उनको शर्म आनी चाहिए। और अगर महाराष्ट्र के लिए एक आपका मापदंड है तो आपको कर्नाटक के लिए भी ऐसा मापदंड रखना पड़ेगा, आपको कोलकाता के लिए वो भी ऐसा मापदंड रखना पड़ेगा। और अगर एनकाउंटर के मामले में आपका एक मापदंड महाराष्ट्र के लिए है तो आपका मापदंड पंजाब के लिए क्या है जहाँ पर 55 एनकाउंटर हो चुके हैं, और तमिलनाडु में जो 2 एनकाउंटर एक हफ्ते में हुए हैं उसके लिए आपका क्या मापदंड है, मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूँ। ये बहुत शर्म की बात है कि अभी भी ये लोग एक रेपिस्ट का समर्थन करते हैं, और ऐसा रेपिस्ट का समर्थन हम लोग कतई नहीं कर सकते। और जो अगर कानून ने उसको सजा नहीं दी तो निसर्ग ने उसको सजा दी है, और ऐसा सजा उसको मिलना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा जो लेसन जाता है सोसाइटी में कि ऐसे लोगों को, ये हमारे एकनाथ शिंदे जी का सरकार है, एक्शन वाली सरकार है, फेसबुक लाइव वाली सरकार नहीं है। हम एक्शन करेंगे और ऐसा न्याय लोगों को दिलाते रहेंगे। हनुमंत पवार साहब, यू हर्ड कृष्णा हेगड़े जी, आप सुना कृष्णा हेगड़े साहब ने क्या कहा। आर यू स्टैंडिंग विद द रेपिस्ट और आर यू स्टैंडिंग विद द पुलिस ऑफिसर? हनुमंत पवार साहब, कहां खड़े हो आप? जो रेपिस्ट है उसके बारे में हेगड़े साहब हो या बीजेपी के और कोई लोग हो, इनको बोलने का कोई अधिकारी पहुंचता नहीं। इस महाराष्ट्र में, इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी लीडर नहीं या कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ, वो मर गया तो उसकी बाजू ले ले, ऐसा कोई भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अक्षय शिंदे जो मौत मरा है वो मौत का हकदारी था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर हम यहां महाराष्ट्र में की बात करें तो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब की ये जिम्मेदारी थी कि ऐसे रेपिस्ट लोगों के ऊपर कोर्ट ट्रायल होनी चाहिए थी, कोर्ट ने उसको फांसी देनी चाहिए थी। वो तय करने का अधिकार कोर्ट का है। अभी हेगड़े साहब इतने बुजुर्ग है, बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम न्याय करेंगे। तो भाई न्याय, एकनाथ शिंदे अगर न्याय करने लगे तो फिर संजय राठौड़ को भी गोली मारनी चाहिए। लेकिन संजय राठौड़ को आप बगल में लेके उनको मिनिस्ट्री देते हो। अगर आप ऐसे ही न्याय करना चाहते हो तो एकनाथ शिंदे साहब के साथ जो बैठे हैं, जो अभी इस महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने कुलदीप सेंगर को भी गोली मारनी चाहिए, ब्रिजभूषण सिंह को भी बीजेपी वालों ने गोली मारनी चाहिए। जो हमारे कल्याण में परसों 3 लोग पकड़े हैं, रेपिस्ट पकड़े हैं, उनके ऊपर भी कोर्ट ट्रायल चालू है, तो उनको कब गोली मारने वाले हो? मैं हेगड़े साहब से ये बात पूछना चाहता हूं कि अक्षय शिंदे को मदद करने वाला जो संस्था चालक है आपटे बोल के, और उसका एक साथी है, वो 40 दिन से एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब को मिल नहीं रहे, तो उनको कब आप गोली मारने वाले हो? हाथ में पिस्तौल लेके अगर हम गोली मारते जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अक्षय शिंदे को जो मौत मिली है उससे महाराष्ट्र के हर एक को खुशी है, हमें भी खुशी है। लेकिन वो मौत कोर्ट ने देनी चाहिए थी, ट्रायल चला के देनी चाहिए थी, ना कि सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, होम मिनिस्टर और पुलिस को वो अधिकार नहीं है।
अब जो हम बात कर रहे हैं वही बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने भी आज की है। हम ये पूछते हैं सत्ताधारियों से, एकनाथ शिंदे साहब के प्रवक्ता जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपते को आप कब पकड़ने वाले हो? जिन्होंने ये मामला पुलिस में लेके जाने को रोका था उनके ऊपर मुकदमा चालू है, वो 40 दिन से आपको नहीं मिल रहा। जो पुलिस अफसर ने ये मामला थाने में दर्ज करने से इनकार किया था उसको आपने क्या किया है? तो आप अगर हाथ में पिस्तौल लेके किसी को मार रहे हो तो कोर्ट, कायदा, कानून और सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मैं अक्षय शिंदे जो मौत मरा है वो मरने वाला ही था, लेकिन वो अधिकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं था, वो जुडिशरी को अधिकार था। जुडिशरी के अधिकार एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब अगर अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो पहले उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर और संजय राठौड़ को गोली मारनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि ये दोहरे मापदंड नहीं लगाते, तब हम मानेंगे कि इनको महिलाओं के सुरक्षा का कोई तो जिम्मा लेने की जरूरत है। अकेले देवेंद्र फडणवीस साहब के जिले में 350 से ज्यादा रेप की केस हुई है। किन किन को गोली मारी है फडणवीस साहब ने जाके? तो ये मामला इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है क्या नहीं, इस राज्य में हमारी माता भगिनी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, और इस राज्य में जो दोहरे मापदंड लगाते हैं कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों का साथीदार कोई बलात्कारी है तो उसको अलग न्याय, और अगर अक्षय शिंदे जैसा है तो उसको गोली, ये दोहरे मापदंड का कोई जवाब महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसका मैं निषेध करता हूं। Sir, before I come to you, I'll go to Dr. Surya Malhotra. Dr. Malhotra ji, you heard शरद पवार साहब ने 2 दिन पहले ये कहा था कि सत्ता डोक्यात गेलिया है, दैट वाज इन केस विद नीतीश राणे जी। मगर आज उन्होंने कहा कि जस्टिस हैज टू बी विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। सुप्रिया सुले जी ने वही कहा। हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? यू हर्ड हेगड़े साहब स्पीक, यू हर्ड हनुमंत पवार जी स्पीक। आप अपना हाउ शरद पवार साहब देन, यस बोलिए डॉक्टर मल्होत्रा। Exactly, I definitely agree with जो हमारे कांग्रेस के हनुमंत पवार जी, yes, yeah, the Hanuman ji. So I agree with him, and definitely you cannot take justice in your hand and execute the justice as and when it is convenient to your party, as and when it is convenient. That is the word. Because if you are trying to say that, okay, we are the ones, we are the people who are going to give the justice, in this way, this is called a street justice, or it is called a fake encounter. But then what about the other cases? What about the other cases? There also the same similar way the justice should have been taken care of. But no, this is selectively this particular case. See, there are a lot of questions in this case. There are, as we have seen the video, that he is coming with his face covered, then his hands are हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। तो ऐसा आदमी जो है, जो वो कैसे इतने 4 लोग आपके सामने जो पुलिस वाले बैठे हैं, तो उनके सामने बैठ के वो कैसे वो पिस्तौल को निकाल सकता है? कैसे वो 4 लोग उसको ओवर पावर नहीं कर सकते क्या? इतनी तो ट्रेनिंग पुलिस वालों को तो डेफिनेटली होती है। और फिर उसको जब ये शूट करते हैं तो उसको मतलब सिर पे क्यों गोली मारी जाती है? Why not in his feet or somewhere else? I think they are trained to do that. If they want to incapacitate somebody, but just to catch him or overpower him, there are ways in which they can shoot. But why was it shot point blank way? And this is definitely a fake encounter. It definitely is proved that it is a fake encounter. Even the High Court has raised certain questions. Now the thing is that, okay, definitely we are not supporting this, and we are definitely against the way the children and everybody is being harassed in Maharashtra. But at the same thing, we just had recently also we had one Andolan where we said ki we want Shakti Kaida. This is precisely why we were all demanding for a Shakti Kaida. We want a fast track court. We want the court to decide about these cases very fast so that justice can be meted fast. Definitely they should be hanged. Definitely they should be given such a punishment that next time the person people will think about against doing such a heinous crime. But at the same time, you cannot take justice in hand. I was actually, we were all, appealed to see there were so many
banners all over the city that Devendra Fadnavis ji with a gun in his hand, Badlapur. and Badlapur Badlapur. and Badlapur. So this is the, I mean, where is the Maharashtra going? This is the Adarsha which we are keeping in front of the children. See, I mean, this is not the way things have to be done. Why not have fast track court? Why not give justice first? Why are you, why Shakti Kaida is still not passed from the Kendra? This is what is required. We require fast justice, but it has to be done in a proper way. That is what we say. हेगड़े साहब, you heard the criticism. पवार साहब ने जिस प्रकार से कहा कि संजय राठौड़ का क्या, कुलदीप सेंगर का क्या, ब्रजभूषण का क्या, and as Dr. Surana Malhotra said, डोक्यात कशाला, why the head? आप सर पर क्यों मारा, पैर पर मार सकते थे वो, हेगड़े साहब बहुत सारे प्रश्न उठने लगा है, बहुत सारे प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। हेगड़े साहब देखिए, पहले तो मैं कहूँ ये बदला जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का बदला नहीं है, ये बदला है जो हमारे माता बहन और बच्चे रहते हैं महाराष्ट्र में उनका बदला है। दूसरी, हमारे सम्मान्य प्रवक्ता जी दोनों ने कहा है कि स्त्री शक्ति जो कानून है वो क्यों नहीं लेके आए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कानून नहीं है, और कड़क कानून है, और जो पॉक्सो कानून ये जो अक्षय शिंदे है उसके ऊपर लगाया गया था, और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे भी हम लोग उसको सजा दे रहे थे। लेकिन आज के दिन पे जो उसने हरकत की या उसने कांड जो किया कि पुलिस का रिवॉल्वर लेके वो पुलिस पर गोली चलाई, 2 पुलिस कर्मचारी जख्मी हैं, इसमें से जो मोरे है हमारे एपीआई वो गंभीर तरह से उनको गोली लगी है, और जो आत्मसंरक्षण में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने अगर गोली चलाई है तो मुझे लगता है कि वो सही बात है। नहीं तो यही लोग कहते थे कि पुलिस की जो पिस्टल है वो क्या शो पीस है, और अगर अक्षय वहाँ से भाग जाता था तो ये कहते थे पुलिस क्या कर रही है महाराष्ट्र में, वो तो सोई हुई है क्या। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि जयदीप आप्टे हो या दूसरा कोई हो, कानून के हाथ लंबे भी है और पक्के भी है, और जयदीप आप्टे ज़्यादा दिन के लिए भाग नहीं सकता, वो जहाँ पर भी है कानून उसको पकड़ के लेके जाएगा, और अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर ट्रायल होगा। तीसरी बात यह है कि आपने हमारे कोई नेताओं का नाम लिया, संजय राठौड़, कुलदीप सेंगर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया है और एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ है तो उसका मतलब है कि कुछ साबित नहीं होता। लेकिन जो ये बच्चों का मामला है, इसमें बच्चों ने खुद स्टेटमेंट दिया है, उनके जो पेरेंट्स है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसके अलावा अक्षय शिंदे की जो बीवी है उसी ने भी स्टेटमेंट दिया है, और इसके लिए वो दोनों जो इश्यूज है उसमें बहुत फर्क है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही ने तो कहा कि चौराहे पे मारो, उसको चौराहे पे फांसी लगा दो, रेल के पटरी पे आप ही लोग फांसी का जो फंदा है वो लेके आए थे और बोले थे कि उसको ये यहाँ पर फांसी देंगे, तो वहां पर कौन सा कानून लागू है? आप बोले तो कानून, आप करे तो कानून, और हम अगर महाराष्ट्र पुलिस करे तो लॉलेसनेस आ गया है क्या? ऐसा दोहरा मापदंड फिर से नहीं हो सकता, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, शरद पवार साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है हमको पता है। उनके ही प्लेन में जब वो जा रहे थे तो अंडरवर्ल्ड के लोग उनके ही प्लेन में जा रहे थे। क्या शरद पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे उनको पता नहीं था कि ये 2 लोग अंडरवर्ल्ड के हैं? तो उन लोग उनके प्लेन में, मुख्यमंत्री के प्लेन में कैसे गए? तो शरद पवार साहब को भी उनके कार्यकाल में जो हुआ उसके ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। जो डिफेंस मिनिस्टर थे तभी और सेक्टर में थे तो भी मुंबई में राइट्स हो रहे थे, तो शरद पवार साहब ने क्या आर्मी भेजी थी यहाँ पर? सीआरपीएफ भेजा था यहाँ पर? एसआरपीएफ भेजा था यहाँ पर? उन्होंने इतने दिन चुप्पी क्यों साधी? उसके ऊपर भी उनको जवाब देना है। तो अगर शरद पवार कोई प्रश्न उठाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। वो हमारे सीनियर लीडर हैं महाराष्ट्र के, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम उनका जवाब देंगे। लेकिन अगर हम भी प्रश्न पूछते हैं तो उनके पार्टी को भी हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं। That doesn't certainly justify what the whatever the present thing which is going on. You're always going in the past. Yeah, sorry. हनुमंत पवार साहब, आपने सुना दो डबल स्टैंडर्ड है आपका डबल स्टैंडर्ड। हेगड़े साहब कह रहे हैं कि पंजाब में एनकाउंटर हो रहा है, वहां आप शांत हो।
कोलकाता में कोई एक्शन नहीं हो रहा, वहां पर शांत हो, तमिलनाडु में एनकाउंटर हो गया, वहां आप शांत हो। ये डोगलापन क्यों, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? पवार साहब, मैं तो वही पूछ रहा हूं मैं हेगड़े साहब को कि कोर्ट में ट्रायल होके कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा हुई है, वो अभी जेल में सजा काट रहा है, तो वो बीजेपी का एमएलए था, तो क्या किया आपने? दूसरी बात, संजय राठौड़ की जो मैंने पूछी, दोगलेपन की बात करते हैं हेगड़े साहब, संजय राठौड़ की जो वो लड़की थी जिसके ऊपर से एलिगेशन लगे थे, वो तो मर गई बेचारी खुदकुशी करके। फिर आप जिनके साथ अब सत्ता में बैठे हो, वही पार्टी की एक स्पोक पर्सन चित्राताई वाघ बोल के है, वो तो रास्ते पे आती थी, पूरी बीजेपी रास्ते पे आती थी। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है जो संजय राठौड़ जैसे आदमी को साथ में लिया, और वो बीजेपी जो उनके साथ आप बैठी है कांधे से कांधा लगा के मिनिस्ट्री पे, जो कभी उनके खिलाफ रास्ते पे थी। आप वही हेगड़े साहब, आपकी शिवसेना, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना उनके साथ अभी सत्ता में है, जिन्होंने गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो कोर्ट ने सजा सुनाई थी, वो सजा माफ करने वाली सरकार जिस पार्टी से है, उस पार्टी के कांधे से कांधा लगा के आप बैठे हो। आप बोलते हो कि अगर किसी के ऊपर एलिगेशन किया तो कोर्ट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर एलिगेशन है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत की उनके ऊपर मुकदमा चालू है, और वो भी लड़की थी ना, छोटी लड़कियां थी, कुश्ती हमारी रेसलर लड़कियां थी। तो कुलदीप सिंह सेंगर, संजय राठौड़, बिल्किस बानो के रेपिस्ट जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उनकी बाजू लेने वाले, ब्रिजभूषण सिंह को, उसके लड़के को टिकट देने वाले, उसको मिनिस्ट्री से नहीं हटाने वाले, संसद में उसको लेके बैठने वाले, इन लोगों के साथ आपके एकनाथ शिंदे साहब बैठे हैं। तो दोगलापन क्या होता है ये मुझे तमिलनाडु में, पंजाब में, बंगाल में जाके देखने की जरूरत नहीं। मैं जिस राज्य में बैठा हूं उस राज्य की पार्टियां, आपकी पार्टी क्या कर रही है मैं आंखों से देख रहा हूं। इसके ऊपर आप जवाब दे दो। जो आपटे अभी भी फरार है, जो संस्था चालक फरार है, उसके यहां और भी लड़कियों का यौन शोषण होने के आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर वहां से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके भी आरोप लग रहे हैं, कोर्ट में मामला जा चुका है। एक अमेय तिरोडकर बोल के एक्टिविस्ट है, उन्होंने अर्जी दाखिल की है कि यह संस्था में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा था। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था, बीजेपी से जुड़ी हुई संस्था, जो आपटे की संस्था है, जहां इस छोटी बच्चियों का शोषण हुआ था, अक्षय शिंदे वहां काम कर रहा था, उस संस्था के आला लोगों को बचाने के लिए आपने अक्षय शिंदे को गोली मारी है। इसके ऊपर आप जवाब दे दो, सुनना चाहते हैं हम। महाराष्ट्र पुलिस की जो प्रमुख है, मुखिया है हमारी रश्मि शुक्ला मैडम, वो आगे आके कुछ भी नहीं बात कर रही है, और सीएम साहब आगे आके कहते हैं कि आप फांसी की मांग कर रहे थे। हेगड़े साहब ने भी ये बात कही। यहाँ एनसीपी की स्पोक पर्सन मैडम बैठी है, मैं कांग्रेस का बैठा हूं, कोई भी एनसीपी का एक्टिविस्ट नेता कार्यकर्ता या कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता वहां नहीं था, वहां आम लोग थे। जो लोग आपने संस्था चालक को पीठ पीछे ढकेल दिया था, आपने उस लड़की के मां को 36 घंटे पुलिस स्टेशन में बिताया था, आपने वो संस्था को अभय दिया था, उनको बचाने की कोशिश की थी। इसके ऊपर जो संतप्त जन था वो रास्ते पे आता था। हम अभी भी मांग करते हैं कि जो रेपिस्ट है उनको फांसी देनी चाहिए। इसका मतलब कोर्ट में ट्रायल चलनी चाहिए, पुलिस ने उसका सही तरीके से जो पूरा तपास है वो पूरा करना चाहिए, और उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन करते हो, उसको फांसी पे लटका गोली मार देते हो, हम किसी पे करते तो ये जंगल राज हो गया। यूपी में जो योगी आदित्यनाथ ने खेल खेला है, एनकाउंटर का हो या बुलडोजर न्याय का हो, वही रास्ते पे एकनाथ शिंदे साहब चलना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर जो गद्दारी का सिक्का बैठा है, उनके ऊपर जो तोड़ मोड़ के सरकार करके बैठने का जो सिक्का बैठा है, वो ऐसी हरकतों से नहीं मिटने वाला। ये उनका वही प्रयास है कि आने वाले चुनाव में लोग मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या जल्द से जल्द न्याय देने वाला बोल के मुझे ध्यान में रखिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनको एक खोखे वाली सरकार 50-50 कोटी रुपए लेके जो आमदार खरीदे हैं, एमएलए खरीदे हैं, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार, इसके
मुखिया के तौर पे ही एकनाथ शिंदे साहब को महाराष्ट्र की जनता ध्यान में रखने वाली है। Dr. Malhotra, before I come to you, let just Dr. Mr. Hegde साहब respond कीजिए. बहुत he has accused you of a lot of things. बहुत सारे accusation है. Pradeep Right ji, from, I'll make my statement and leave because okay, I have please taken do time that. till Yes, please do that. 7:30 Yes, because yes, I have yes. another Please, show please, to please. go. First, let me tell you that ये जो 110 विधायक हमारे पास महाविकास आघाड़ी से आए, वो गद्दारी से नहीं आए, वो आपके नेता संभाल नहीं पाए। उद्धव ठाकरे जी कोई उनके विधायक को मिल नहीं रहे थे, उनको कोई फंड नहीं दे रहे थे, उनका काम नहीं हो रहा था, इसके लिए वो एकनाथ शिंदे जी को नेता मानकर वो हमारे साथ आए। दूसरी बात यह है कि आरोप तो बहुत कुछ लगेगा, जैसे आप लगाते आए हो 50 करोड़ 50 करोड़, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा है, ज्यादा वोट भी हमको गिरा है, और इलेक्शन कमीशन ने हमको सिंबल दिया है और इलेक्शन कमीशन ने हमको पार्टी का नाम दिया है, तो हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी में 1967 से नहीं मैं बोलूंगा कुछ, लेकिन कितने खोखे लिए और कितने कंटेनर भर के पैसे लिए, उसका पूरा जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास है। तो इसके लिए कौन कितना पैसे लिए हैं उसके बारे में नहीं बोले तो ही अच्छा रहेगा। साहब की भी पूरी दूसरी उम्र बात ये है, उनके साथ ही गई है, तो वो भी लेते थे क्या? दूसरी बात ये है कि आपने आरोप लगाया है कि वुमेन ट्रैफिकिंग का, जो बच्चे 3 और 4 साल के जो रेपिस्ट अक्षय शिंदे ने रेप किया है, अभी भी आप उसका समर्थन करते हैं, वो बहुत शर्म की बात है। और 3 और 4 साल के जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, लड़कियां, कोई वुमेन ट्रैफिकर नहीं है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो आप जरा ध्यान रखें। और पीड़ा होगी ऐसे पेरेंट्स को जो अगर ऐसा बात उन्होंने सुना है, और जो पेरेंट्स पहले स्कूल के मैनेजमेंट के पास गए थे और स्कूल के मैनेजमेंट ने शायद एक्शन नहीं लिया, जो पुलिस कर्मचारी ने कुछ घंटे देरी की, हमने 4 पुलिस जो कर्मचारी है उसको निलंबित किया, स्कूल का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल किया, स्कूल के ट्रस्टी के ऊपर हमने एफआईआर लॉन्च कर दिया। स्कूल के ट्रस्टी आज फरार है, लेकिन उनको भी पकड़ के हम कोटड़े में बंद करने वाले हैं। उसके अलावा उनको गोली मारी है, गोली नहीं, वो आप कैसे बोल सकते हैं गोली मारी है? आप कैसे? देखिए, आप सामान्य प्रवक्ता जी, जब आप बोले मैं बीच में नहीं बोला, आपने जो एलिगेशन किया है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा संयम रखिए। और सभी जो कांग्रेस जैसे हड़बड़ाती है, ऐसे हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरी बात, आप संजय राठौड़ के बारे में बोल रहे हैं, संजय राठौड़ के बारे में एलिगेशन था, संजय राठौड़ के बारे में कोई प्रूफ नहीं था। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में आपने कहा है, तो अगर वहां पर गलती हुई है तो ब्रिजभूषण शरण का लोकसभा का टिकट हमने काट दिया है, उसके बेटे को दे दिया, उसके बेटे को दे दिया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे भाई जरा आप सुनने का भी संयम रखिए। क्या बात क्या कर रहे हो? सुनने लायक तो बात करो, सुनने लायक तो बात करो। बात ऐसी करनी चाहिए कि सुनने लायक। शरण सिंह जो है, रेपिस्ट के बेटे को टिकट दिया और ये टीवी चैनल पे बता रहे हो आप? तो उसका बेटा आरोपी है क्या? उसका बेटा आरोपी है क्या? आपने अगर आरोप किया तो मैं आपके बेटे को जेल में डालू क्या? आपके बेटे को जेल में डालू क्या? आप क्या बोलना चाहते हैं? सुनिए, आप दो इश्यूज को मिक्स मत कीजिए। अगर ब्रिजभूषण शरण आरोपी है, उसका प्रूफ हुआ नहीं है, ब्रिजभूषण सिंह को एनकाउंटर कब होने वाला है? decorum. I have not come here to speak on this program. I have not interrupted when other people are. बोलिए अग्नि जी, बोलिए। When other people are speaking, they should have a बोलिए अग्नि जी, decorum. I have not बोलिए। उसके बाद interrupted. मैं उनके पास जाता हूँ। बोलिए। देखिए, ब्रिजभूषण शरण ने अगर कुछ किया है और वो गलती किया है, उसके ऊपर एलिगेशन है, तो उसको प्रूव होना चाहिए। लेकिन ब्रिजभूषण शरण के वजह से उसके बेटे को हम दोषी नहीं मान सकते। तो ऐसा होगा कि आप कुछ बोल कर रहे हैं और आपके बच्चों को हमने दोषी माना, ये गलत फिर से एक कानून ये सेट कर रहे हैं और गलत एक परंपरा सेट कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो स्कूल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये गलत आरोप है। ये कांग्रेस को दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, अभी वो बैकफुट में गए हैं, इसके लिए कुछ नहीं तो अभी स्कूल के ऊपर आरोप करेंगे। अरे स्कूल का ट्रस्टीज को तो हमने सैक कर दिया, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर हमने बिठा दिया, पुलिस कर्मचारी को हमने सैक कर दिया, जितना भी हमको एक्शन लेना था उसको एक्शन ले लिया।
आपने ही बोला था ना उसको फांसी दो, तो पुलिस ने उसको गोली मारी। आपको तो खुश होना चाहिए कि एक रेपिस्ट का ऐसा अंत हुआ है, एक बकासुर हो या बशमासुर हो, ऐसा उसका अंत हुआ है। रेपिस्ट का अभी भी आप तारीफ करेंगे तो ये बहुत शर्म की बात है। और प्रदीप जी, नाबिया मैं साहब मेरा उनको ऑलरेडी रोकिए, ओवर ड्यू नाबिया हो गया है, साहब मैं उनको आपको रोकिए। रेपिस्ट अगले की शो में बाजू मिलता हूँ। यहाँ ओके, बैठे हुए किसी ने भी लिया नहीं, ये हनुमान 2 जी, बार उन्होंने बोला है, बोलिए बोलिए दो हनुमान बार जी। बोला है उन्होंने। तारीफ करते हैं, ये अक्षय गलत है। शिंदे की तारीफ यहाँ बैठे हुए किसी ने भी की नहीं है। Exactly. उनको बोलो, तमीज से बात करने को बोलो। यहाँ ये बैठा देखिए पूरा क्या, रिकॉर्ड है शो, आप देख रहे हो, एडिटर वहां बैठे हैं। रेपिस्ट की नहीं, बाजू तमीज से ना बात करने की एनसीपी बात ने क्या ली है, होती ना है? आप मैंने, जरा ना आपका एंकर ने जबान ली है। संभाल के बोलिए, Exactly, that's a ऐसा wrong लैंग्वेज thing मैं to भी say यूज that. कर सकता हूँ। आप That's a झूठ wrong मत thing to बोलिए, say. ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। लाइव आप लाइव तो लाइव क्या हुआ? लाइव लाइव चल रहा है। आप आपके शब्द वापस ले लो। अरे आप कौन है बोलने आप वाले? कुछ भी वापस ले बोलते लो। जाए और हम सुनते जाए। आप कौन है बोलने वाले के वापस नहीं ले नहीं, लो? मैं डॉक्टर मल्होत्रा, आप कौन है फिर झूठ पवार फैलाने साहब मैं वाले? आपको बताता हूँ। झूठ डॉक्टर फैलाने आप ही, वाले मल्होत्रा, आप आपके कौन है? पार्टी और आप ही झूठ फैला रहे हैं आप। डॉक्टर मल्होत्रा, अरे झूठों के आपने सरदार है जिस आपके मुखिया बैठे हुए वहां। अरे जाओ जाओ, अभी छोड़ो अभी। डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, हेगड़े साहब ने चार्ज लगाया कि शरद पवार साहब कैन नॉट टॉक अबाउट मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि इस प्रकार के क्राइम के बारे में बोले। फिर इंसिडेंसेस बोले कि प्लेन में उनके अंडरवर्ल्ड के लोग गए थे, जब वो डिफेंस मिनिस्टर था, यहां पर रॉयट्स हुआ तो पवार साहब सीआरपीएफ ने भेजे, आर्मी भेजा, तो तरह तरह के आरोप। यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट डॉक्टर मल्होत्रा? This is the always when there is no argument, they always say talk something ridiculous about Pawar Sahib that we all know. Anything and everything they talk about Pawar Sahib, because I think the Pawar Sahib is the Pawar Sahib and Rahul Gandhi, and these are the native way, they have to sort of say something about it, because they cannot really argue. Just now we saw that what are the things which we both the spokespersons did not even say that. Yes, We yes. were talking about something else. We were talking about that law and order has to be there. We need fast track courts. We need justice, but we need it in a legal way. And that's the reason, as I said, कि शक्ति कायदा जल्द से जल्द आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? ये सब बातों को छोड़ के दूसरे ही ट्रैक पे चले जाते हैं। वो तो हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। पवार साहब खेती के लिए पवार साहब ने क्या किया, ऐसी बातें बोलते हैं, तो उसको उनके बातों को तो कुछ मतलब ही नहीं होता। ये सब डिस्ट्रैक्शंस होती है। ये इनकी ही जो पार्टी है जो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है अभी। ओके, बाय द वे, आई जस्ट वांट टू से दैट अभी खबर आई है कि अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, और जो हम लोग मतलब बोल रहे थे अभी कि कैसे पार्टियां तोड़ते हैं। Correct. अमित शाह जी आए, उन्होंने लोगों को क्या बोला? ठीक है, पहले पार्ट बोला कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करो, और कैसे काम करो, तो आप हर बूथ पे जाओ, और बूथ में जो लोग होते हैं उनको अपने और खींच लो। जो महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, उनको कैसे भी करके अपने साथ खींच लो। ये उनका डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड लेवल वर्क। हाँ, और उसमें बाद में ये भी बोला जाता है पार्टी की तरफ से कि नहीं, हम तो मतलब डेफिनेटली हमारा महायुति तो जीतने वाली है, ये लोग तो पहले से ही हारे हुए हैं। अरे हारे हुए बोल रहे हो तो एक साइड पे बोल रहे हो कि हमारे कार्यकर्ताओं को खींच लो, और दूसरी साइड में बोल रहे हो कि ये तो हारने वाली पार्टी है। तो ये क्या विरोधाभास है? और बस कुछ भी होके ये सब टूट फूट की राजनीति में ही आ जाते हैं। उनको दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है, महायुति को कुछ भी काम नहीं करना है। बस उनका क्या एजेंडा है? तोड़ फोड़ करो। That's the only thing which they are ready to do, and I don't think now anybody would be willing to go and join them. डॉक्टर मल्होत्रा सिर्फ वही नहीं, उन्होंने कहा कि शरद पवार जी और ठाकरे जी को हमको मिलकर हराना है। शरद पवार जी को हराना है, शरद पवार जी को हराना, ये एक टास्क दिया है, यानी एमवीए को हराना है। और भी अलग अलग बात भी कहा, बट ये जो जिस प्रकार से कल मोदी जी आ रहे हैं, अब अमित शाह जी आ गए, पूरे महाराष्ट्र में मोदी जी और अमित शाह का एक वेव चल रहा है इलेक्शन से पहले। हाउ डू यू सी दैट? देन आई विल गो टू हनुमंत पवार साहब। आई थिंक बीएन कुमार आल्सो ज्वाइनिंग विद आवर इंजीनियरिंग। प्लीज कनेक्ट मिस्टर बीएन कुमार। यस डॉक्टर मल्होत्रा, फिर आई जस्ट गो टू हनुमंत पवार। अभी जैसा मोदी जी आ रहे हैं तो निसर्ग ने ही खुद ने इशारा दे दिया है। निसर्ग ने इतना रेड अलर्ट कर दिया है, निसर्ग ने उनके जो जगह होने वाली है, जहाँ पे उनकी मीटिंग होने वाली है, वहां पे इतना कीचड़ जमा दिया है। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि निसर्गों की भी नहीं चाहिए कि बाबा वो लोग कुछ यहाँ आए, बट हम लोग चाहते हैं कि वो लोग आए
और जैसे लोकसभा में जैसे उन्होंने सब लोग ने भाषण किया था, तो वैसे भाषण करें और उसका बेनिफिट हमें मिले। मैं हनुमान पवार साहब आपके पास आता हूं। आज राहुल गांधी जी ने सरकार से मोदी जी को पूछा है कि सरकार चला कौन रहा है, हु इज रनिंग द गवर्नमेंट। ये कंगना रनौत कुछ स्टेटमेंट दे रही है कि 3 काले कानून को वापस लेके आना चाहिए। उसके बाद वो अपोलोजाइज करती है, बोले कि आई विड्रॉ माय स्टेटमेंट। एंड खड़गे साहब, राहुल गांधी साहब ने कहा कि अभी विल नॉट टॉलरेट दिस। फिर आप किसानों को इंसल्ट कर रहे हो, आप किसान से जुड़े हो, शरद पवार साहब किसान से जुड़े हो। पवार साहब आप बताइए, हनुमान पवार साहब, क्या ये किसान का अपमान है जो खड़गे साहब बोल रहे हैं? ये जो महामहिम एक्ट्रेस मैडम है, क्या नाम है उनका, कंगना रनौत, तो ये महामहिम वहां बैठी हुई है। हर 8 दिन में एक स्टेटमेंट ऐसा देने का उनको टास्क दिया है, ये मोदी साहब ने दिया है। पहले ऐसे स्टेटमेंट स्मृति ईरानी मैडम करती थी, उनकी जगह अब इनको वो टास्क दिया है। तो 8 दिन में एक ऐसा स्टेटमेंट करने का जो जिसके ऊपर विवाद खड़ा हो, उसके बाद जाके कभी नड्डा साहब माफी मांगते हैं, कभी राजनाथ सिंह जी माफी मांगते हैं, या और कोई माफी मांगता है। तो ये जो कंगना रनावत बोलती है वो बीजेपी को बोलने की मंशा होती है, लेकिन हाउस में वो बोल नहीं सकते, जनसभा में वो बोल नहीं सकते। तो ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने हर एक सरकार में पाला हुआ है, उनमें से एक कंगना रनावत है। इसलिए वो हमारे किसान भाइयों को बुरी तरह से अपमानित करती है। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। वो कानून यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिनके नेतृत्व में कंगना रनावत काम करती है, उन्होंने वापस लिए थे। तो अब वो कानून लाने की बात अगर कंगना रनावत करती है तो बीजेपी में बहुत अहम ओहदा रखती है। वो कौन से कानून सेंट्रल गवर्नमेंट में लाने के और कौन से नहीं लाने के, ये तय करने का हक उनको बीजेपी ने दिया है, सरकार ने दिया है। तो इनको हल्के में लेना नहीं चाहिए। वो जो बोलती है वो मोदी साहब की मंशा रहती है, ऐसा हम कांग्रेस वाले समझते हैं। तो किसानों के ऊपर मोदी साहब का गुस्सा है। इस इलेक्शन में 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 63 इनके एमपी हार चुके हैं, उनमें से 9 से 12 तो मिनिस्टर रह चुके थे। तो ये बड़ा झटका इस देश के किसानों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने और युवाओं ने, जिनके हाथ को काम नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई करके हाथ को काम ढूंढते हैं, ऐसे बेरोजगार युवाओं ने मोदी साहब को दिया हुआ झटका है, वो भूल नहीं रहे हैं। इसीलिए किसानों को, कभी दलितों को, कभी अल्पसंख्यकों को कंगना रनावत के मुंह से गुस्सा निकालने का काम मोदी साहब करते हैं। और दूसरी बात, अब आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब महाराष्ट्र में आके जा रहे आते, तो यहाँ जो बीजेपी का स्टेट का लीडरशिप है वो पूरा की पूरा नाकामयाब हो चुका है। 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया महाराष्ट्र से। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी बीजेपी खत्म होने की गुंजाइश अभी है। वो संभालने के लिए दिल्ली से ये दोनों आ रहे हैं। अब हंसी की मजे की बात आपको बताता हूं, मैं खत्म करता हूं। पूना में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है हमारे पुणे में, तो ये मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए इस 10 साल में मोदी साहब 6ठी बार आ चुके हैं, कल आने वाले हैं वो 7वीं बार है। तो एक ही प्रोजेक्ट का उद्घाटन 6 बार 7 बार कर दिया कि ऐसी क्या कमजोरी मोदी साहब की है जो महाराष्ट्र में आके एक ही प्रोजेक्ट का 6-6 7 बार आपको इनॉग्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है। तो देवेंद्र फडणवीस हो, चंद्रशेखर बावनकुळे हो, इनके सब लोग, हमारे कांग्रेस से लिए हुए लोग हो, राष्ट्रवादी से लिए हुए लोग हो, पूरी ईडी है, सीबीआई है, पूरा इनको अदानी ग्रुप का पूरा पैसा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, फिर भी महाराष्ट्र में इनकी सरकार हारने जा रही है। हो सके तो बचाएंगे, ऐसा सोच के मोदी साहब, अमित शाह साहब यहाँ आ रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, जो हम लोग वही सेम टॉपिक कंटिन्यूस, मोदी जी आ रहे हैं, कंटिन्यूस अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी विदर्भ, मराठवाड़ा, उन्होंने कहा कि यहां पर हमारे पश्चिम महाराष्ट्र पे ध्यान देंगे। आज नासिक में दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली एंड देयर टारगेट इज शरद पवार जी। टोटल टारगेट है शरद पवार जी, उनको डेसिमेट कर देना। मगर ये कंफ्यूजन यहां पर है, अजित पवार जो इनके साथ है, अजित पवार जी हमेशा कह रहे हैं कि अभी भी हर दिन कह रहे हैं शरद पवार हमारा दैवत है, शरद पवार मेरा दैवत है। तो ये क्या चल रहा है? अब लड़ाई चल रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, डॉक्टर मल्होत्रा? See,
मुझे लगता है ये जो पार्टी जो तीन जन जो साथ में है, महाराष्ट्र की जनता को दे थिंक दैट महाराष्ट्र की जनता डजंट अंडरस्टैंड थिंग्स, उनको लगता है कि हम लोग कुछ भी बोले, भाषण में कुछ भी बोलो, जनता को क्या, महाराष्ट्र की जनता समझ जाएगी, उनको क्या, मतलब हम लोग वी कैन सॉर्ट ऑफ हिप्नोटाइज देम इनटू बिलीविंग व्हाटएवर वी आर सेइंग। पीपल हैव सीन, उन्होंने इनको रिजल्ट दे दिया है। तभी भी उन्होंने पहले इनिशियली आपको पता है कि जब भी वो दूसरे पार्टी में गए, मतलब हमारी पार्टी छोड़ के गए, तो भी पवार साहब का फोटो लगाते थे। क्यों? जस्ट टू जस्टिफाई दैट दे आर गोइंग एंड जस्ट टू सेइंग नो कि हम लोग साइड पे हो गए हैं, मगर हम लोग स्टिल वी बिलीव इन पवार साहब। इट वाज ओनली व्हेन पवार साहब सेड कि नो, डोंट पुट माय फोटो, यस, ओनली यस, बोलिए डॉक्टर मल्होत्रा। Yes, so only when Pawar साहब said कि please don't put my photograph, आप लोग सेपरेट हो गए हैं तो आप सेपरेटली अपना करिए, तो भी अभी भी यही चल के अभी भी वापस सेम थिंग वो कर रहे हैं, just to get लोगों से sympathy, but people are not going to forget the way they got divided from a party, the way उन्होंने पार्टी तोड़ी, इतना सबका भरोसा तोड़ा। पर चलो अभी तो मतलब everybody is now everybody is doing without them, so that's no question about that. हनुमान पवार साहब, बहुत सारे इश्यूज जो लाड़की बहन योजना है, गुलाबी रिक्शा है, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना है, 10 लाख स्टूडेंट्स को दे रहे, अन्नपूर्णा योजना है, 10 योजना लेके एकनाथ शिंदे जी कह रहा कि हम हर कुटुंब से मिल रहे, एवरी कुटुंब, हर फैमिली से हम लोग जाके मिल रहे हैं। निश्चित है कि लोग इस स्कीम्स को, गरीब कल्याण स्कीम्स को अपनाएंगे। एक चीज है कि ये स्कीम्स के बारे में आप जरा समझा दिए, क्या एक आम किसान को कुछ फायदा हुआ? बिकॉज किसान जो है गरीब, बिकॉज आप बहुत रिप्रेजेंट किए, बीमा योजना है, बिकॉज अभी भी मोदी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 रुपया में बीमा दे रहा हूं, 1 रुपया में बीमा दे रहा हूं। ये एक जबरदस्त हमारे स्कीम है जो किसान को दिल को छुआ है। तो कितना सच्चाई है इसमें? बिकॉज ये प्राइम मिनिस्टर ने भी इस 1 रुपया स्कीम बीमा का उन्होंने जिक्र किया था। पवार साहब थे, बोलिए पवार साहब। नबियात साहब, ये बहुत ही बुनियादी सवाल आपने मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र के रीजन और विदर्भ के किसानों के बारे में आपने पूछा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। पिछले 1 महीने से विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, हेवी रेन से जूझ रहा है। पूरा सोयाबीन का फसल पानी में बह चुका है, पूरा कॉटन का जो फसल है वो खराब हो चुका है। अनगिनत ऐसी वेजिटेबल की खेती करने वाले जो किसान थे वो हमें ध्वस्त हो चुके हैं। 1 महीने से विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो या वेस्टर्न महाराष्ट्र का कोई थोड़ा इलाका हो, इस गवर्नमेंट में खेत में जाके किसानों का कितना नुकसान हुआ है इसका पंचनामा भी अभी तक किया नहीं है। जिस क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में मोदी साहब कहते हैं, भाई 1 रुपए में क्रॉप इंश्योरेंस आपने निकाला ऐसा कहते हो, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस में जो नेशनल लेवल पे कंपनियां है उनको तो सरकार पैसे दे रही है। सरकार का पैसा तो मेरा पैसा है, हम सभी का पैसा है। वो मेरी जेब से सीधा 1 रुपया जा रहा है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जो मुझसे टैक्स लेके पैसा इकट्ठा करती है वो बहुत सा पैसा बीमा कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार दे रही है। लेकिन उसके आगे बीमा कंपनी क्या कर रही है? 1 महीने से हमारी पूरी फसल पानी में है, वहां जाके स्पॉट पंचनामा भी नहीं कर रही है। तो आगे जाके वो पंचनामा कब करेंगे, वो हमारा नुकसान कब मापेंगे कि कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ, और कब जाके वो हमें मुआवजा देंगे। तो मोदी साहब जो क्रॉप इंश्योरेंस पे बोलते हैं, एकनाथ शिंदे साहब जो क्रॉप इंश्योरेंस पे बोलते हैं, वो साफ तौर पे जमीनी स्तर पे अगर जाके देखा तो वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। किसान भाइयों की हमारे आत्महत्या दिन ब दिन महाराष्ट्र में, विदर्भ में बढ़ रही है। आप दूसरी बात कही लाड़की बहन योजना का, यह अच्छी बात है कि हमारे महिलाओं के हाथ में पैसे जा रहे हैं, लेकिन कितना पैसा दे रहे हो आप? 1,500 रुपए। आपको मैं बताता हूं नाबियात साहब, पिछले हफ्ते ये गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से हमारे जो ऑयल है, जो हम खाने में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, 1 लीटर का भाव 25 रुपए से बढ़ गया है। चावल के भाव हो, प्याज के भाव हो, या हर जगह महंगाई से हमारी महिलाएं, हमारी माताएं जूझ रही है। 1,500 रुपए में घर चला के एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित पवार साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि 1,500 रुपए में आप घर चला के दिखाइएगा। महंगाई आप कम नहीं कर रहे हो। हमारे जो फसल है
खेती में वो बह के जा रहे, उसको मदद नहीं कर रहे हो। जो फसल हाथ में आती है उसको आप भाव नहीं दे रहे हो। आज भी हमारे प्याज का भाव हो या हमारी सोयाबीन का भाव हो या कॉटन का भाव हो, एमएसपी से बहुत नीचे आ चुका है। तो आप 1,500 रुपए की अगरबत्ती महाराष्ट्र में कहते हैं, ये कहाँ घुमा रहे हो आप, किसको बता रहे हो? जितना इवेंट पे इन्होंने खर्चा किया है तीनों पार्टियों में, ये अलग बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि अजित पवार साहब, एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब की पार्टी में बहुत बड़ा झगड़ा है कि ये योजना का बेनिफिट किसने लेना है। एक दूसरे के बैनर पे ये फोटो भी नहीं छपते हैं, इतना इनके आपस में झगड़े चालू है। लेकिन वो छोड़ दो, उनका आपसी मामला है, वो पूरे लोग ज्यादा दिन इकट्ठा नहीं रह सकते, ऐसा आइडियोलॉजी में कहा गया है। लाड़की बहना योजना सिर्फ इवेंट पे, एडवर्टाइजमेंट पे और इन तीनों के खुद के समाधान के लिए है। लोगों को उसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। मेरे जिले में 9-9.5 लाख लोगों ने माता हमारे अर्जी की थी, उनमें से 3 लाख महिलाओं के अकाउंट में भी पैसे जाके नहीं पड़े। वही हाल पूना में है, वही वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में है। तो ये सरकार 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद जब ये इलेक्शन लगाएंगे, ये डर रहे हैं। अगर इनका कहना है कि इतनी अच्छी योजना है तो लगाइए इलेक्शन, इनका कहना है कि बहुत अच्छे सरकार काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, तो लगाइए इलेक्शन। ये इलेक्शन टालने की बात कर रहे हैं। महीना 1.5 महीने में ये सरकार जाने वाली है। महाराष्ट्र की जनता इस योजना का जो ऑडिट है वो हमारे बैलेट पेपर पे दिखाने वाली है। डॉक्टर मल्होत्रा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि जितना महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मैंने काम किया है, कह रहे हैं कि 1 करोड़ लखपति दीदी, 33% महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने इंट्रोड्यूस किया है। पीएम आवास योजना में 70% वुमन को हमने दिया है। वुमन को हमने रजिस्ट्रेशन में नाम डाल दिया, पहले उनको हक दिलाना का काम हमने किया है। ड्रोन दीदी के माध्यम से हम वुमन को सोशल एम्पावरमेंट कर रहे हैं। तो कितना सच्चाई है, बिकॉज आप वुमन से रिलेटेड एनसीपी शरद पवार साहब के साथ वुमेन्स इश्यूज को लेकर बहुत, यानी आपने बहुत काम किया है पवार साहब के साथ। हाउ डू यू सी, क्या सचमुच कुछ किया है ग्राउंड में? कुछ महिलाओं को कुछ सशक्तिकरण हुआ है, महिला को कुछ फायदा हुआ है? डॉक्टर मल्होत्रा, there is hardly anything done for the women. They have not done anything for the women. These are only advertising gimmicks which वे लोग बहुत माहिर है, कैसे कैसे योजनाएं निकालते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बहुत सारे इन्होंने जैसे बोला कि तीनों पार्टी में अपने आप उनके वो कंपटीशन रहती है कि कौन उसका क्रेडिट लेगा, तो वैसे वो क्रेडिट के मामले में ही उनका झगड़ा होता है। और ये सब योजनाएं जो है, जो ग्राउंड लेवल में कहाँ कभी आती है, ग्राउंड लेवल में आती ही नहीं है। मैं बताऊं, एक टाइम में महाराष्ट्र इतने हाई लेवल पे था, महाराष्ट्र इतना सुख समृद्धि था, महाराष्ट्र में इतनी मतलब अभी तो इतनी मतलब उनकी दुर्दशा हो गई है, जो महंगाई इतनी बढ़ गई है। इन्होंने जरा बराबर बोला कि 1500 आप भाई हो किसी के, तो आप क्या खाली ये महंगाई के दिन में आप खाली सिर्फ 1500, इतनी सारी टैक्स कलेक्ट हो रही है, वो कहाँ जा रही है? दैट इज बीइंग वेस्टेड ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स। और वही पैसा जब लोगों में देते तो उसका कितना बेनिफिट होता। तो ये सब चीजें जो मतलब ये सब दिखावा है उनका। अब बजट निकालिए, आई थिंक सम 4000 crores, whatever amount, so much high amount they are spending on all these advertisements and showbaji. ना एक्यूजेशन है अजित पवार जी पे कि उनके जो प्लानिंग कर रहे हैं उस एजेंसी को 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जी 200 crores and for what? Just to become pink. What does it what is it? Nothing is being coming out of that. गुलाबी जैकेट, पवार साहब, आई वांट टू नो, बिकॉज मोदी साहब ये फार्मर्स के हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, आप सचमुच फार्मर्स के लिए बहुत कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, सोलार पंप, सोलार फार्मिंग, एथेनॉल उत्पादन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, तो 1 करोड़ फार्मर्स को हमने नेचुरल फार्मिंग में लेके आया, बिकॉज किसान रिलेटेड बहुत बड़ा समस्या, किसान प्रधान देश है। तो इस पे आपका जानकारी क्या है? ये मोदी जी जो रिपोर्ट कार्ड लेके सब जगह भेजते हैं हर पत्रकार के ऑफिस में, तो कितना सच्चाई है? सॉइल हेल्थ कार्ड, सोलार फार्मिंग, सोलार पंप दे रहे हैं, 11 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, 3.24 लाख करोड़। तो सच्चाई क्या है? क्या ये डिजिटल क्रॉप सर्वे वगैरह कुछ हुआ है ग्राउंड लेवल पर? नाम्बियाल साहब, मैं आपको बताता हूं कि मोदी साहब
ये सब मीडिया हाउसेस में भेजते हैं, पीआर एजेंसी को भेजते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर चैनल को ये भेजते हैं। We welcome Mr. B.N. Kumar. B.N. Kumar ji, independent political observer, a journalist. B.N. Kumar ji, welcome to the show. Along with us is Hanuman Pawar Saab from the Indian National Congress, Dr. Surendra Malhotra from the NCP Sharad Pawar Group. We are discussing the farmers issues and farmers को relief जो मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड है, हनुमान पवार साहब सच्चाई बता रहे हैं, because farmers किसान से जुड़े हुए हैं हनुमान पवार साहब बोलिए। तो ये जो आपने मोदी साहब ने जो किसानों के लिए जो योजनाएं वो मीडिया हाउस में प्रेस नोट निकाल के भेजते हैं, तो मेरी उनसे, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मोदी साहब तो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, मेरी उनसे गुंजाइश है कि कभी आइए मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे खेत में आइए, वहां बताइए मेरे किसान भाइयों की तेरे कपास का भाव क्यों गिर रहा है। वहां आके मेरा जो प्याज का किसान है उससे हाल पूछिए कि मेरे प्याज का दाम क्यों गिरता है, वो पूछ रहा है किसान हमारा। अब जो सोयाबीन है उस सोयाबीन का एमएसपी इन्होंने 4,800 रुपए दिया है। अभी जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सोयाबीन का सोया सीड का मार्केट है अकोला में, विदर्भ में, और मराठवाड़ा में, लातूर में, तो 3,200 3,500 तक हमारा सोयाबीन वहां बिक रहा है। अभी तो सोयाबीन आना चालू ही नहीं हुआ, तभी इतने भाव गिरे हुए हैं। 4,800 रुपए से खरीदने की कोई भी इंतजाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं किया। तो प्याज उत्पादित करने वाला हमारा किसान भाई हो, कॉटन खेती करने वाला किसान भाई हो, या सोया सीड उगाने वाला हमारा भाई हो, इन सबको इन प्रेस नोट से क्या ताल्लुक है, उनके जीवन में क्या बदल हो रहा है, उनके भाव, उनके माल को भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 4-5% ज्यादा हर महीने में 5-6-7% खाद के भाव बढ़ते हैं। पिछले महीने में पेस्टिसाइड लेने जाता हूं, जो भाव रहते हैं उससे 10% अगले महीने में भाव बढ़ते हैं। तो एक तरफ खेती करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए उसके ऊपर जो जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, खाद हो या पेस्टिसाइड हो या सीड हो, और जब हमारा माल आता है प्याज हो तो भाव गिरते हैं, सोयाबीन का भाव गिरता है। क्रॉप इंश्योरेंस अब 1 महीने से विदर्भ मराठवाड़ा पूरा हेवी रेन से जूझ रहा है, पूरी फसल हमारी बह के गई है, कोई भी क्रॉप इंश्योरेंस की कंपनी नहीं आई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 रुपए का भी मुआवजा हमारे किसान भाइयों को नहीं मिला। तो जब बाढ़ आती है, हमारी फसल बह के जाती है, तब सरकार नहीं रहती यहाँ। जब प्याज के भाव गिरते हैं तब सरकार कहाँ जाती है पता नहीं। जब सोयाबीन लेके मैं मार्केट में जाता हूँ तो हमें भाव नहीं मिलता। जब हम किसान भाइयों को जो चीजें चाहिए वो मोदी साहब को और उनके सरकार में बैठे हुए लोगों को पता है। अब जो कृषि मंत्री बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ये अच्छी बात है इस सरकार का। मैं इसी एक मुद्दे पे अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 10 साल में इस देश में कृषि मंत्री कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी नहीं बता सकता था। अब इस वक्त हम सिर्फ नाम तो बता सकते हैं कि शरद पवार साहब था तो मालूम पड़ता शरद पवार साहब है उधर, अभी तक कुछ नहीं मालूम। जी, तो 9 साल में ऐसा कोई हुआ ही नहीं था, इन्होंने किया ही नहीं था। तो किसानों के बारे में तो मोदी साहब का झूठ महाराष्ट्र में किसान भाई बहन हमारे अच्छी तरह से पकड़ चुके हैं। B.N. कुमार साहब प्लीज कम इन। शरद पवार साहब ने कहा द एनालिसिस ऑफ द कमिंग इलेक्शन, उन्होंने कहा कि महायुति को फडणवीस जी इंक्लूडेड एवरीबॉडी 100 सीट से ऊपर नहीं मिलेगा। B.N. कुमार जी बोले बड़े बड़े काम गिनाते, इतने इंडस्ट्रीज आ गए, इतने रोड बनाए, प्रगति मार्ग बनाए, तो हाउ डू यू सी डेवलपमेंट कर दिया, वाडवान बंदर 70,000 करोड़। B.N. कुमार जी, जो शरद पवार साहब के पार्टी कह रहे हैं 100 सीट नहीं मिलेगा, 100 सीट से कम मिलेगा महायुति को, हाउ डू यू एनालाइज दिस B.N. कुमार जी? सीट का तो किसको कितने मिलेगा वो तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। एक तो सबसे पहले चुनाव का घोषणा भी नहीं हुई, और इन पार्टियों में अभी तक कुछ गठबंधन भी नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला ना नहीं एनडीए नॉर अपना इंडिया ब्लॉक किसी का भी नहीं हुआ है। So it's very difficult to say किसको कितना सीट मिलेगा। As far as the development agenda is concerned, it's pretty fine to make this kind of announcement during the elections, but actually ground level पे कितना implement होता है वो देखना चाहिए। सबसे पहले ये अनाउंसमेंट करने से पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कार्ड निकालना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 5 साल पहले इन लोगों ने क्या अनाउंसमेंट्स किया था, या फिर 2.5 साल पहले उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, उसमें कितने इम्प्लीमेंट हुए। प्राइम मिनिस्टर इतने सारे स्टेट्स में, इतने सारे जिलों में जाके टूर करते हैं, पैकेज अनाउंस करते हैं, उसमें से कितना उन लोग कितने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुए, कितने टेक ऑफ हुए, कितने पे काम शुरू हुआ, कितने में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, वो रिपोर्ट कार्ड देके फिर आप प्रेजेंट कीजिए। आज जाके 50,000 के अनाउंस करते हो, फिर परसों आके बोलते 100,000 करोड़, फिर आके बोलते 25,000 करोड़। दिस काइंड ऑफ फिगर्स हैव नो वैल्यू, इट इज ओनली एक किस्म का गुब्बारा है, ये काइंड ऑफ बलून द पॉलिटिशियंस ट्राई टू क्रिएट।
And this happens before any election, and it has been happening much more in the last 10 years. मोदी साहब, बीएन कुमार जी, मोदी जी कंटिन्यूस आ रहा है महाराष्ट्र में, अमित शाह जी घेरा लेके बैठे, परसों विदर्भ में था, मराठवाड़ा, अब पश्चिम महाराष्ट्र, अब नासिक में भी गया, मींस ऑल जितने ये जोन्स है सब रीजन्स कवर कर रहे हैं। क्या इनका इंपैक्ट होगा, मोदी जी अमित शाह का इंपैक्ट होगा? बिकॉज दे आर फीलिंग द पेन नाउ, बिकॉज उनको जीतना है, अब मगर जीतने का संकेत किधर नहीं है। अमित शाह जी ने खुद कहा कि विदर्भ में हम लोग सोचते थे जीतेंगे, एक ही सीट निकला लोकसभा में, और सिर्फ गडकरी जी के निकले। हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज इट्स अ इलेक्शन मोड नाउ। बीएन कुमार जी, इलेक्शन मोड अभी नहीं कहता कोई इलेक्शन मोड में है, ये प्री इलेक्शन मोड है, क्योंकि इलेक्शन जो साथ में होनी थी, हरियाणा, झारखंड, JNK और महाराष्ट्र साथ में होनी थी, इनको दे डिडंट हैव द गट्स टू होल्ड द इलेक्शंस ऑल टुगेदर। अभी महाराष्ट्र में कब होगा, कैसे होगा, उसका पता नहीं है। एंड बिफोर द एक्चुअल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कम्स इनटू फोर्स, they want to come, they want to make all kind of announcements, promises, everything to beat the code of conduct, and that's normal practice with the BJP now. And of course they have to work very aggressively because they have their credibility has been eroded quite a bit. एक तो सबसे पहले गठबंधन तोड़ के इनका कांग्रेस को तो स्प्लिट करवाया, शिवसेना को स्प्लिट करवाया, काफी सारे फेल्यूर्स है, फार्मर्स इश्यूज है, as Mr. Pawar was saying, and there are lots of issues, unemployment है, all these things put together. See, the religious fervor that has been created during the Ramlala temple inauguration, that doesn't last long. After that also, there have been issues in Ayodhya, there have been issues in, of course, the parliament elections also took place after that, the leakage issues in Ayodhya temple. Plus the most important issue today, I think according to me, on two issues that every party has to fight. One is the Maratha reservation, the other is the destruction, the fall of Chhatrapati Shivaji Maharaj statue. That is something that is going to make a big dent in the credibility of the BJP Shiv Sena combined. डॉक्टर मल्होत्रा, शरद पवार साहब ने जो रिसेंटली कहा, डेवलपमेंट कुछ दिखाने के लिए नहीं है 10 साल में और इनके छोटे कार्यकाल में, तो जो उन्होंने कहा सत्ता डोक्यात गेला है, रेफरिंग टू नितेश राणे कंटिन्यूस कमेंट, घुस के मारेंगे, चुन के मारेंगे, अंदर से निकाल के मारेंगे। फिर BMC का बुलडोजर वहां जाता है मुंबई में मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो इलेक्शन से पहले क्या कम्युनल टेंशन बढ़ा के पोलराइजेशन, क्या ये डेवलपमेंट का कुछ, शरद पवार साहब जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का दिखाने के लिए नहीं है, तो ये सब पोलराइजेशन चालू कर दिया, सत्ता डोक्यात गेला है। डॉक्टर मल्होत्रा, exactly, this is सत्ता डोक्यात गेले, the way they दूर से सब बातें करते हैं, कितना हेट स्पीचेस देते हैं, और उनके अपने लोग ऐसे बातें करते हैं, उनको कोई उनके पार्टी के सीनियर्स कोई रोकते ही नहीं है, इनफैक्ट उन लोग को बढ़ावा मिलता है ऐसे। तो ये दिस इज बेसिकली एज सर जस्ट नाउ सेड कि देयर इज नो रियल डेवलपमेंट व्हिच हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स. So now people are sort of asking questions, people have raised the question, और उनके पास कुछ आंसर्स नहीं है, तो उसको डिविएट करने के लिए ये सब चीजें होती रहती है. जैसे कंगना रनावत कुछ बोल देती है, नीतीश राणे तो बार बार कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कितने उनके बारे में कुछ उनके अगेंस्ट कुछ केसेस भी करो तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ही कीप्स ऑन टॉकिंग. तो ये सब कोई दूसरे भी जो आमदार है वो भी कुछ भी बातें करते रहते हैं. तो ये सब दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन, लोगों को बस दूसरी चीजों में उलझा के रखने के लिए होता है, बिकॉज देन वी सॉर्ट ऑफ वी गिव बैक आंसर. बट ये जो मेन जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये सब कुछ एड्रेस किया ही नहीं जा रहा है. अभी महाराष्ट्र में युवा कितना परेशान है, युवा परेशान है तो उनके पेरेंट्स परेशान है, घर की महिला परेशान है कि ये महंगाई से कैसे जूझे हम. तो ये जो सच्चे क्वेश्चंस है, जैसे इन्होंने बताया कि फार्मर्स को भी कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम जैसे पवार साहब जब पवार साहब सत्ते में थे तो उन्होंने कैसे एड्रेस किए थे, ग्राउंड लेवल में जाके एड्रेस किए थे. इसके लिए तो सब जो फार्मर का वर्ग है वो जो पवार साहब को इतना मानता है, तो नेचुरली ये सब चीजें होनी चाहिए. अल्टीमेटली आप सत्ता पे आते हो तो ना कुछ कुर्सी के लिए आते हो, आप तो लोगों के काम करने के लिए आते हो. हाँ, लोगों के काम करो तो लोकप्रियता मिलती है, आपको मिलेगी जरूर, क्यों नहीं मिलेगी. यही अभी तो लोगों ने दिखा दिया कि आप भले इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप शोबाजी करेंगे, बट येट लोगों ने आपको अभी पसंद नहीं किया. तो ये जो रियली जो ग्राउंड लेवल में जो काम करता है भाई, वही सक्सेसफुल होता है.
पवार साहब, हनुमंत पवार साहब, वर्षा गायकवाड़ जी जाके खड़ी हो गई बुलडोजर के सामने। बुलडोजर धारावी में मस्जिद गिराने जा रहा था। बिगर पिक्चर, उसके बिगर पिक्चर यह है, वहां अडानी के रीडेवलपमेंट चल रहा है, अडानी जी के रीडेवलपमेंट चल रहा है। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे, पार्लियामेंट से लेके हर चीज में रोज कह रहे, A1 A2 A1 A2 मोनोपोली हो रहा है। तो क्या दिस इज अ बिगर पिक्चर? ये बिगर पिक्चर है कि अडानी के लिए पूरे उनको मुंबई में स्थान करना है तो मस्जिद को तोड़ो, बुलडोजर को भेज दियो। तो आप इसको कैसे देखते हो? वर्षा गायकवाड़ जी खुद खड़ी होगी वहां पर और रोक दिया, उसको रोक दिया। बट बिगर पिक्चर अडानी अंबानी है। पवार साहब, हनुमंत पवार साहब, अभी पिछली कैबिनेट में 8 दिन पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, अगर मैं थोड़ी गलती कर रहा हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, कि 30 साल आगे जाके 30 साल महाराष्ट्र को बिजली देने का कॉन्ट्रैक्ट यस, अदानी की कंपनी को 6,600 मेगावाट, 6,600 मेगावाट का, बिल्कुल सही। तो ये पूरा ये गवर्नमेंट जाने वाली है, जाते जाते अदानी साहब को फायदा पहुंचाना है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये सीधी बात है कि पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, कोई भी महाराष्ट्र में अगर नई चीज आती है तो उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता का पहला अधिकार होना चाहिए, लेकिन अदानी साहब का और उसके बाद अंबानी साहब का उसके ऊपर अधिकार रहता है। इसको ही आगे जाके बीजेपी ने जो धारावी का प्रोजेक्ट है पूरा, वो उनके जेब में डाल दिया है, उनको गिफ्ट दिया है। और वहां के जो लोग हैं, नेटिव जो है वहां रहने वाले, उनका बहुत ज्यादा विरोध है। वो विरोध इनको चुनाव में भी उसका सामना करना पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी उस विरोध को वो बाजू करके अदानी साहब को ये गिफ्ट देने जा रहे हैं। और वहां से अपना महाराष्ट्र की जनता का जो लक्ष्य है, वो वहां से उनका जो ध्यान है वो भटकाने के लिए हमारे महाराष्ट्र में जो कंगना राणावत है, जो नीतीश राणे है ना, वो हमारे महाराष्ट्र की कंगना राणावत है, तो उसको भेजा जाता है। कभी मराठवाड़ा में भेजा जाता है, कभी सांगली में भेजा जाता है, कभी अहमदनगर में भेजा जाता है, अभी धारावी में भेजा गया है। तो वर्षा गायकवाड़ जी हमारी बहुत ही जुझारू लीडर है, बहुत ही स्टडीड एमपी है, संसद से सड़क तक कांग्रेस के लोग गरीबों के हक के लिए खड़े रहेंगे, कम्युनल हार्मनी के लिए खड़े रहेंगे, संविधान की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। वर्षा जी का जो कदम था वहां जाके डट के खड़ा रहना, इस गवर्नमेंट के, बुलडोजर गवर्नमेंट के संविधान के अगेंस्ट जो वहां चीजें चल रही है, उसके लिए मैं अभिमान व्यक्त करता हूं, मैं फख्र व्यक्त करता हूं। वर्षा जी जो लड़ाई लड़ रही है वो आम आदमी की लड़ाई है। We come to the final round. बीन कुमार जी, क्या आप देख रहे हैं? सब देख रहे हैं, अडानी अंबानी 6,000, जैसे हनुमंत पवार जी ने 6,600 मेगावाट उनको दे दिया। वहां पर वर्षा गायकवाड़ जी खड़े हो रहे हैं, वहां धारावी के पूरे रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां अडानी को दे दिया है, एयरपोर्ट अडानी के पास दिया है, पोर्ट अडानी। तो क्या दिख रहा है सबको, और सबको एक डिस्टेस्ट होने लगा है कि क्या चल रहा है, अडानी अडानी अडानी। अब जैसे गए बार हम लोग डॉक्टर मल्होत्रा जी से चर्चा कर रहे थे, लाल बाग का राजा, उधर भी अंबानी अडानी, वो लास्ट तक लेके जा रहे हैं, जो पहले कभी देखा नहीं था कि विसर्जन के अंदर, समुद्र के अंदर वो लोग चले जा रहे हैं। नो, व्हाट इज हैपनिंग? इट सीम्स टू बी वेरी डिस्गस्टिंग टू द आई कि ओपनली किस प्रकार से हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट, बीएन कुमार जी? एज यू सेड, इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस करते हैं, लेकिन बट ऑफ कोर्स when the next government comes in, if this government does not get elected, all these projects will be reviewed. But Mr. Uddhav Thackeray had already said they will review the the Dharavi project. Similarly, any of these last minute contracts or the projects that have been announced, they will definitely be reviewed, and I think they'll have it. Most importantly, what is important for the beach, there has to be transparency. That's what is lacking now. That's the general impression among the opposition parties and independent observers is that some kind of a lack of transparency. Transparency has to be there. There has to be tender system. There has to be competition. ऐसे नहीं कि एक किक ऑफ दिया जाए. और there were reports also that some of the tender the conditions were altered and they were made in such a way to suit some people. Like when you're going to set up solar project, you want people experienced also set up a thermal project. They are contrary to each other. Of course, ultimately production is power. The raw material for solar, it is sun, it is the natural resource. For thermal power, it is coal. So on the one hand, you want to help the environment to improve, cut down on coal consumption, cut down on fossil fuels. On the other hand, you are going to
for the tons of coal production, coal-based plants, and on the other hand, this kind of solar projects. I mean, it's an inherent contradiction. इसको देखे भी काफी सारी असमंजस है पब्लिक के माइंड में. This has to be sorted out. The final 1 minute, दिनों से डॉक्टर मल्होत्रा, the final 1 minute. आपका लड़ाई सिर्फ मायावती से नहीं है. शरद पवार साहब का लड़ाई सिर्फ मायावती से नहीं है. शरद पवार has to fight अडानी, has to fight अंबानी, और मोदी जी और अमित शाह जी पूरे महाराष्ट्र के जिस प्रकार से डेरा लेके बैठे हैं. You got a tough fight. Are you going to succeed? आपने कहा कि 100 सीट से ज्यादा मायावती को नहीं मिलेगा. But I think you got a tough fight with you, Dr. Malhotra. Yes, we have to fight and we are all ready for it. It is very nice that Mahayuti, the Mahavikas Aghadi, महायुति को डेफिनेटली हरा देंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में एकजुटता है, साथ में मतलब सभी साथ में है, जो महायुति में है नहीं. महायुति में अलग अलग उनके सबके मतलब अलग अलग पावर प्ले चल रहा है. तो एंड बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जनता हमारे साथ है. लोकसभा इलेक्शन में भी जनता ने दिखा के दिया कि people are not happy with the present government and they will definitely show it via the voting, and definitely we have a better chance. But of course, as you said very correctly, we all have to be together and we all have to fight a lot. Yes. पवार साहब, 1 मिनट में अडानी अंबानी तो है ही, मोदी अमित शाह जी, मोदी जी अमित शाह जी यहाँ पर बैठे हैं, ढेरा लेके बैठे हैं. यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई है, मगर सबको मालूम है क्या रिजल्ट है. सब जानते हैं कि एमवीए इज गोइंग टू टेक ओवर. आप इस लड़ाई को कैसे देखते हो? ये मैं आपका ध्यान मैं इधर भी थोड़ा लेना चाहता हूं कि 5 तारीख को राजर्षि शाहू महाराज जी की जो कर्म भूमि है कोल्हापुर, वहां हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी गांधी आ रहे हैं. तो राहुल जी का, प्रियंका जी का भी ध्यान महाराष्ट्र के ऊपर है. शरद पवार साहब इस उम्र में भी हर महाराष्ट्र के जिले में जा रहे हैं. उद्धव ठाकरे साहब के शिवसैनिक हो, ग्रास रूट पे काम करने वाला शिवसैनिक हो, या उद्धव ठाकरे साहब हो, हम तीनों मिलके एकजुट से, एक दिल से, एक साथ कांधे से कांधा मिला के ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाली सरकार, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, औरतों की सुरक्षा को लेकर बेफिक्र ये सरकार को हम हराने जा रहे हैं. कितने भी मोदी साहब आए, कितने भी अमित शाह साहब आए, आपको बताने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा. 17 जगह मोदी साहब ने लोकसभा में सभाएं की थी, उनमें से 14 जगह वो हार गए थे. तो मैं तो कहता हूं कि हर जिले में, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में मोदी साहब की सभा होनी चाहिए. वो कितना झूठ बोलते हैं, कितना फेंकते हैं, कितने झूठे आंकड़े करते हैं. अभी वो हमारे प्रवक्ता चले गए आप पे झूठा आरोप लगा के, तो वो बोल रहे थे कि बाप ने अगर कोई गुनाह किया तो लड़के को आप सजा देते हो. भाई वो दादी इंदिरा जी है राहुल गांधी जी की, वो परदादा है नेहरू साहब, इंदिरा गांधी जी, उनके पिताजी राजीव गांधी जी, सोनिया जी, इन सबका आप राहुल गांधी के ऊपर ही भड़ास निकालते हो. तो मोदी साहब महाराष्ट्र में आने चाहिए, अमित शाह साहब महाराष्ट्र में आने चाहिए. हमें भी देखना है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले अजित पवार साहब को और उनके गिरोह के लिए मोदी साहब किस तरीके से वोट मांगते हैं. बेन कुमार जी, द फाइनल कमेंट. मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी, अमित शाह डेरा लेके बैठे. इट्स अ बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड. व्हाट डू यू सी? क्या दिख रहा है आपको? व्हाट डू यू सी द फ्यूचर? Future is going to be very exciting from the political reporting point of view, but from the common man's point of view, it's going to be highly confusing. क्योंकि यहाँ तो सिर्फ promises चल रहे हैं. अभी तक जो भी हुआ, the unemployment is very high, the price rise is very high. People are not talking about reducing the prices of petrol. They have been asking for GST to be implemented for petrol and diesel. This government is not working on it. They are only passing the buck to the states. If the BJP decide, they can implement it. And all this kind of last minute freebies. एक तो कहते हैं कि freebies नहीं देना है, बाद में कहते हैं freebie देना है, announce करते हैं. But as you said, other than the Amit Shah, Modi, and of course the rest of the people, the entire cabinet I believe has been assigned to have this thing on Maharashtra. But of course, Rahul is there. Rahul's last Padayatra has been the yatra has been quite successful even through Maharashtra also. So I think he will have an impact. So let's see how it shapes up. I have never seen Sharad Pawar साहब के एज में जिस प्रकार से एक जिला में घूम रहे, my God, 24/7 just काम करें. We need to admire the way. Absolutely. Thank you so much for being on the show. Dr. Surendra Malhotra, thank you so much. Hanumant Pawar sahab, thank you so much. And B.N. Kumar ji, thank you so much for your time.
Thank you so much for being on the show. As we always conclude with the preamble to the Constitution, which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity." Justice, that is social, economic and political. Equality is equality before the law, and equal protection of rights. When you talk about liberties, freedom of speech, expression, faith, worship, belief, right to life, liberty and pursuit of happiness, and fraternity, believing in the territorial and political integrity of the nation, and also eternal brotherhood. You subscribe to the channel, you hear the bell, you subscribe it to, you get the latest on Nation Now, which is going to be one of the best channels of this country, across the world. As we say, it's a fundamental duty of all political parties, political leaders, to see the pillars of the Constitution are safe and secure. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives. And if the Republic survives, the people of India, we the people, we survive. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll come again with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.